Hello everyone, my name is Shreya Singh and welcome to my channel. This video is for all the seated exam students, those who are going to appear it in the July month 2025. I will be sharing my experience with you all and the mistakes I committed. When I gave my seated first attempt in July 2024, I scored 92 marks, just enough to qualify. But in my second attempt this December, I crossed 100 plus marks. So, how did I do it? And one more thing I want to tell you is that I am in my B.Ed final year. Like, this is my third semester going right now. So, being in the second year of the B.Ed, I qualified my seated and I will be eligible for the upcoming teaching exams. So, this video was only to share my experience and mistakes, which will going to help you all in your preparation. Before I begin, let me tell you one thing, that CTES is not any tough exam. It is the simplest exam which I think I have appeared in my life till now, because this is something which obviously it requires some hard work but also some smart work. So I will be telling you one free source because of which you will be able to prepare for this exam effortlessly and you will be able to be successful in this exam too. So I will be telling that resource at the end. First I will be sharing my mistake that I did in my first attempt. So when I give my July attempt, I scored 92 marks, just qualifying. My preparation was quite good at that time because I have practiced a lot. I have practiced a lot of PYQs and from the books I have prepared my own notes. Let me tell you one thing, that it was all free source. I didn't buy any course, online also and offline also. I have prepared completely based upon my self study. So I have practiced all the PYQs like till 2018 one, and but still my exam didn't went well because of one single mistake. This mistake was that I got confused in my language papers. See, there are total 5 parts. Okay, so the first part is for the pedagogy one, the second part and the third part is for the maths and science and social studies. So my subject was of the social studies. तो जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो पार्ट थर्ड में सोशल स्टडीज़ वाला अटेम्प्ट किया था, एंड देन पार्ट फोर्थ एंड पार्ट फिफ्थ इज़ फॉर द लैंग्वेज पेपर, जो कि आप सेलेक्ट करते हो ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ द फॉर्म. वहाँ पे मैंने लैंग्वेज 1 पेपर में हिंदी सेलेक्ट किया था एंड लैंग्वेज 2 पेपर में, जो कि पार्ट फिफ्थ होता है, वहाँ पे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया था. बट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम व्हाट आई डिड इज़ कि पार्ट फर्स्ट पेडागॉजी हो गया, इट वेंट वेल. सेकेंड पार्ट मेरा थर्ड पार्ट अटेम्प्ट किया था सोशल स्टडीज़ का, वो भी अच्छा हुआ. बट फ्लो में क्या हुआ, जल्दी में मैंने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश वाला अटेम्प्ट कर दिया. अब ये चीज़ मेंशन्ड होती है एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में ही, इंस्ट्रक्शंस में प्रॉपरली मेंशन्ड है कि इस क्वेश्चन से लेके इस क्वेश्चन तक, लाइक 91 से लेके 120 के क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का पार्ट है. उसके बाद अगर आपने हिंदी चूज़ किया है एज पेपर लैंग्वेज 1, तो वहाँ पे आप हिंदी अटेम्प्ट करिए. बट अगर आपका लैंग्वेज 1 पेपर इंग्लिश नहीं है और आपने अगर अटेम्प्ट कर दिया इंग्लिश, तो वहाँ पे फिर आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा. वो इट विल नॉट काउंट एनीथिंग, वो आपका 1 मार्क्स भी काउंट नहीं होगा. मैंने क्या किया, मेरा लैंग्वेज 1 पेपर हिंदी था, मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट कर दिया. अब इंग्लिश अटेम्प्ट करने की वजह से मैंने 15 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, वहाँ पे पूरा पेपर ही ख़राब हो गया. फिर उसके बाद जब लैंग्वेज फिफ्थ वाला मैंने अटेम्प्ट किया था, तो उसमें भी इंग्लिश अटेम्प्ट किया. फिर लैंग्वेज सेकंड, क्योंकि वो तो इंग्लिश था ही मेरा, वहाँ पे फिर मुझे पता था कि हाँ मेरा लैंग्वेज सेकंड वाला इंग्लिश था, तो मुझे इंग्लिश ही अटेम्प्ट करना है. बट वो भी फिर मेरे पास टाइम नहीं रह गया था कि मैं उसके लिए भी मतलब करूँ, तो बहुत कम टाइम फिर मेरे पास रह गया था. तो ओवरऑल it was a disaster. My whole paper went a disaster after that, but still I was able to qualify it. Like I scored 92 marks. चाहे उसको लक कहो या फिर पेडागॉजी और सोशल स्टडीज़ में आई स्कोर्ड एज मच जितना मुझे चाहिए था. तो मैंने एक चीज़ किया था कि मैंने एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं, मैंने सारे अटेम्प्ट किए, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. तो वही मेरी एडवाइस एक रहेगी कि कभी अगर ऐसा हो जाए, तो अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है
तो जस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, लक कोई नहीं जानता है ना, तो इट विल बी गुड फॉर यू। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरा 92 स्कोर किया था, 90 चाहिए होता है to qualify this exam, but I wasn't satisfied at all, so I tried for the December attempt. This was count as my second attempt, and in this I scored 104 marks, as you can see. ये जो 104 मार्क्स आए थे, ये भी फर्स्ट जो प्रेपरेशन जुलाई में की थी, फिर मैंने दिसंबर में पूरा वही चीज़ रिवाइज़ किया था। PYQs यहाँ पे भी मैंने अटेम्प्ट किए थे, और लकीली को या मेरी हार्डवर्क को, मेहनत को, आई स्कोर्ड 104 मार्क्स। उतने ज़्यादा भी नहीं है, बट या मेरा गोल था कि मुझे 100+ करना है, तो वो 100+ आ गए। द फ्री सोर्स विच आई टोल्ड यू बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, कि मैंने सिर्फ खाली एक ही सोर्स से स्टडी किया था। सी यहाँ पे 5 पार्ट्स होते हैं ना, तो पेपर 1 पेडागॉगी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट फोकस अपॉन द यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। हिमांशी सिंह मैम का चैनल है, उसमें उन्होंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है पेडागॉगी की, उसको पढ़िए, उसको समझिए, उस पर जो है आप नोट्स बनाइए, आराम से आपका पेडागॉगी उससे जो है समझ में भी आ जाएगा और आपका क्वालिफाई भी हो जाएगा। पेडागॉगी क्वालिफाई क्या, आप उसमें से फुल भी स्कोर कर सकते हैं। मैंने पहले वाले में उसमें 27 स्कोर किया था, सेकंड वाले में 24 आया, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगा था कि जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम था उसमें थोड़ा सा टफ था, बट पहले वाले में मैंने 27 स्कोर किया था। मैं 30 एक्सपेक्ट कर रही थी, बट कोई नहीं। तो आई थिंक 2-3 मार्क्स तो वो एवरेज कट जाते हैं, हो जाती मिस्टेक्स। तो लेकिन एक ही रिलायबल सोर्स है, सिर्फ खाली लेट्स लर्न से ही आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा पेडागॉगी पोर्शन। उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत है ही नहीं। ओनली लेट्स लर्न, हिमांशी सिंह मैम की प्लेलिस्ट है, फ्री है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, हर एक टॉपिक सिलेबस का कवर्ड है, बस उसको करना है। सेकेंड आता है हमारा स्टडी, जो आपको सब्जेक्ट वाला पूरा मैटर है। सब्जेक्ट के लिए जो मेरा था वो सोशल स्टडीज़ था, उसमें मैंने पूरी की पूरी NCERT पढ़ी थी, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, सिविक्स की, ये चारों मैंने पूरी चैप्टर 6 to 8th क्लास की NCERT मैंने पूरी पढ़ी थी। मैंने कोई बुक नहीं ली थी, मैंने सिर्फ ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर लिया था फ्री में, और फिर मैंने उसी को ही नोट्स को, मैंने नोट्स भी नहीं बनाए थे, मैंने उसी PDF में ही अंडरलाइन कर करके उसके जो बॉक्सेस में जो मेंशन्ड होते हैं, जो बॉक्सेस में जो फैक्ट्स मेंशन्ड होते हैं और अलग से जो बॉक्सेस दिए होते हैं, मैंने सिर्फ खाली उससे ही देखा था, और अंदर का भी मटेरियल देखा था। होता ये है कि ये जो सीटेट के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें टोटली 6 to 8th क्लास की NCERT से ही क्वेश्चंस आते हैं और उसके बीच के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस खाली NCERT ही करना है, आपका आराम से सब्जेक्ट पेपर निकल जाएगा। अब आते हैं हमारे लैंग्वेज के दोनों पेपर्स। तो लैंग्वेज पेपर्स जिसमें आपके 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, उसकी प्रिपरेशन के लिए देखिए, इसके जो सिलेबस है ना लैंग्वेज में, उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक ग्रामर का पार्ट आता है, एक पेडागॉगी का पार्ट आता है। तो ग्रामर का पार्ट कोई उतना टफ नहीं होता, बस कॉम्प्रिहेंसिव वाला पार्ट आता है, कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस आते हैं, उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन वाले में भी एक पोइट्री आती है और एक नॉर्मल टेक्स्ट आता है, ठीक है। तो उसमें से भी आप बहुत आसानी से पढ़ के, बहुत इजी सिंपल होता है, बस उसको पढ़ के क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हो। उसके बाद जो पोइट्री वाला होता है उसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच आना चाहिए, वो फिगर ऑफ स्पीच आप पढ़ लीजिएगा तो वो उससे कवर हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। फिर जो पेडागॉगी का पार्ट होता है वो पूरा लेट्स लर्न की PDF आती है फॉर इंग्लिश एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए भी और इंग्लिश वाले पार्ट के लिए भी उसकी एक पूरी बुक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑनलाइन, वो आप PDF उसकी डाउनलोड कर लीजिए और उससे पढ़ लीजिए, उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो बस उतना ही करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना लैंग्वेज के लिए एक बार। और इंग्लिश की जो लैंग्वेज की जो पेडागॉगी है, वही पेडागॉगी सेम सिलेबस हिंदी में भी आता है, तो उसके लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़े से इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी हिंदी समझने में डिफ़िकल्टी हो, क्योंकि हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं इसमें लैंग्वेज पेपर में, तो वो उसके लिए आप जब क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो प्रैक्टिस करते करते वो वर्ड्स पता चल जाएगा कि जो है क्लियर हो जाएगी, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा बाद में।
इसके अलावा हिंदी का जो ग्रामर पोर्शन है उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आता है, बहुत सिंपल ईजी आता है, उसमें भी कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में तो आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ईजी आती है, आप कर लोगे। इंग्लिश के पेडागॉगी और ग्रामर के नॉलेज पे आप हिंदी का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस खाली वर्ड्स क्लियर होने चाहिए हिंदी में। तो ये पूरा का पूरा रिसोर्स था जो मैंने फ्री रिसोर्स कहा था, वो लेट्स लर्न का ही कहा था कि उसी से ही आप बस खाली उसी पे ही रिलायबल रहेंगे, उसी को ही करेंगे आप। चाहे यूट्यूब पे देख लीजिए, फ्री प्लेलिस्ट है उसकी, और फिर ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उनकी बुक की भी पीडीएफ आती है, पेडागॉगी की भी और इंग्लिश के लिए भी। वो बस खाली डाउनलोड करके उसको पढ़ के आप आसानी से सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और 100+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता है लास्ट में कि व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर सीटेट, सीटेट के बाद क्या करें। अब 2025 में कि काफ़ी सारी टीचिंग वैकेंसीज़ आने वाली हैं, जितनी कि मैंने जितना भी अभी तक सर्च किया है, तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं सीटेट, क्योंकि मेरा सीटेट क्वालिफाइड है, सो अब मैं जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं मैं उनकी प्रिपरेशन करूँगी, जैसे KVS, DSSB के NVS और यूपी की टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स आते हैं, बिहार TRE 4.2 आने वाला है। सो ये सभी एग्ज़ाम्स हैं जो आप गोल बना सकते हैं फॉर योर दिस ईयर, ठीक है, फॉर योर 2025 ईयर। सो मेरा भी यही गोल है, तो लेट्स टेक इट टुगेदर। जो लोग अभी अपकमिंग जुलाई में अटेम्प्ट करेंगे तो उनके पास भी इनफ टाइम है, सीटेट अच्छे से प्रिपेयर करिए, अभी वैकेंसी में आने में भी टाइम है, जब तक नोटिफिकेशन जून जुलाई में नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। तो आप लोग पहले सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए जुलाई में, और फिर उसके बाद गोल बनाइएगा कि जब वैकेंसी आएगी फॉर्म फिल करके 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, आराम से आपके पास तैयारी का समय अभी से ही लग जाइए, और सीटेट के बाद तुरंत आप फिर KVS और इन सब के एग्ज़ाम दे सकेंगे। KVS, DSSB, आपका जो ये NVS हो गया, यूपी की टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हो गए, बिहार TRE के एग्ज़ाम्स हो गए, राजस्थान का रीट एग्ज़ाम हो गया, तो ये सब एग्ज़ाम के जो सिलेबस होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं, तो आप एक कंबाइंड स्टडी करके इन सब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं भी यही करूँगी। आई थिंक अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि सीटेट के एग्ज़ाम में आप कैसे 100+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू ऑल. If you have any queries, then you can mention it in the comment section. Thank you for watching it.